Hello students, once again welcome to my channel J Math Guru, and in this lecture we are going to solve the important MCQs on inverse trigonometric function of the topic trigonometric function for 12th MHT CET. लास्ट लेक्चर में हमने 12 MCQs सॉल्व किए हैं. नाउ इन दिस लेक्चर वी आर अगेन गोइंग टू सॉल्व द 12 MCQs ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर MHT CET. तो मैंने आपको पहले ही बताया है वी आर गोइंग टू सॉल्व टोटल 36 MCQs. सो स्टूडेंट्स, if you are new to my channel, please subscribe my channel and please hit the bell icon to get the notification of my newly uploaded videos. So students, चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ दिस लेक्चर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक function for MHT CET. So this is the question number 13 for you, and in this question I have given that if cos inverse of root of p, क्या दिया है क्वेश्चन में, रीड द क्वेश्चन केयरफुली. स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही आपको बोला था जब भी MCQs आपको सामने दिखाई देता है आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व दिस MCQs. ऑल दिस MCQs आर वेरी वेरी important. So given equation in question number 13 is cos inverse of root of p plus cos inverse of root of 1 minus p plus cos inverse of root of 1 minus q is equal to 3 pi by 4. So this is the given equation and I have to find the value of q. मुझे वैल्यू फाइंड आउट करने की है q की. सो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे टू सॉल्व दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इक्वेशन. सो ऑब्जर्व दिस टू टर्म्स, ये दो टर्म आप ऑब्जर्व कीजिए कॉस इनवर्स की. दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ पी, दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस पी है, तो इस पी को मैं रूट ऑफ पी का स्क्वायर लिख सकता हूँ. आई कैन राइट दिस पी एज रूट ऑफ पी स्क्वायर. ऐसा मैंने क्यों लिखा है अब आपके समझ में आएगा. Now this term as it is equal to 3 pi by 4. अब देखिए, this is cos inverse of root x and this is cos inverse of root of 1 minus root of p square. So can this be cos inverse of x and this is cos inverse of root of 1 minus x square. अगर मैं रूट p को x कंसिडर करता हूँ तो p को मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर, दैट इज रूट p स्क्वायर. सो व्हाट इज cos इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ cos इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर. सो वी नो दैट sin इनवर्स x कैन बी रिटन एज cos इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर. सो दिस cos इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इज sin इनवर्स ऑफ x. सो सिमिलरली दिस cos इनवर्स ऑफ 1 root of 1 minus root p square is sin inverse of root p. So this is sin inverse of root p. तो इससे आगे हमें क्या फ़ायदा होगा. by writing the p as root p square this expression becomes cos inverse of root of 1 minus x square. So this cos inverse of root p as it is cos inverse of root of 1 minus x square जैसे कि प्रॉपर्टी है. this is sin inverse of x, x यानी root of p plus this cos inverse of root of 1 minus q is equal to 3 pi by 4. Okay students, so sin inverse of root p plus cos inverse of root p. So this is the important property of inverse trigonometric function, that sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. sin inverse x plus cos inverse x क्या होता है, pi by 2 होता है. So therefore this sin inverse root p plus cos inverse root p is equal to pi by 2 plus this cos inverse of root of 1 minus q is equal to 3 pi by 4, and this cos inverse of root of 1 minus q will be equal to 3 pi by 4 minus pi by 2. 135 minus 90 degree is 45 degree. So this becomes pi by 4 and this root of 1 minus q is cos of pi by 4. कितना होगा, 1 by root 2. cos inverse को शिफ्ट कीजिए. cos of pi by 4 is 1 by root 2. now squaring on both side. So 1 minus q will be equal to 1 by 2 and this q will be equal to 1 minus 1 by 2 equal to 1 by 2. So 1 by 2 is the answer to this question and this 1 by 2 is correct, which is in the last option D. So D is the correct answer to this question number first, that is question number 13 of inverse trigonometric function for MHT CET. तो प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है. I have written cos inverse of root of 1 minus x square as sin inverse of x, and second property is sin inverse of x plus cos inverse of x equal to pi by 2. So students,
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको उनकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से ध्यान में रखने का है। साथ ही आपको ट्रिग्नोमेट्री के कंपाउंड एंगल फार्मूले, मल्टीपल एंगल फार्मूले ये भी यूज़ करने पड़ सकते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस वाज द 13 and now we will solve the next question number 14 of inverse trigonometric function for MHTCET. So this is the question number 14 for you, and I have to find the value of tan inverse of root of 1 plus x square minus 1 upon x. So this can be solved by proper substitution. अगर इसको हमने proper substitution use करते हैं तो this can be easily found. So I have the inverse trigonometric function tan inverse of root of 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करने की है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ एक्सप्रेशंस के लिए कुछ स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन भी होते हैं। अगर आपका एक्सप्रेशन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो सब्सटीट्यूशन करने पड़ता है आपको एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। सो you see that expression and substitution, which substitution is proper for solving this expression. So this type of substitution आपको इंटीग्रेशन टॉपिक में भी मिलेंगे। इंटीग्रेशन जो है आपका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने पड़ते हैं इन्वर्स के, तो उसमें प्रॉपर सब्सटीट्यूशन दिया है। डेरिवेटिव में भी आपको मिलेगा। सो आई हैव टू सब्सटीट्यूट हियर एक्स इक्वल टू tan theta. I will put x equal to tan theta. x equal to tan theta हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखेंगे एक्सप्रेशंस क्या मिलता है। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू tan थीटा। अगर मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इज सेक थीटा, देयर फॉर इट बिकम सेक थीटा, एंड सेक थीटा इज 1 बाय कॉस थीटा। एक मिनट, यहाँ पे सेक थीटा लिख लेंगे माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या है टैन थीटा। सो अगेन वी विल कन्वर्ट दिस इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ साइन और कॉस से। सो इट इज़ 1 माइनस कॉस थीटा, सेक थीटा इज़ 1 बाय कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में मिलेगा साइन थीटा। ओके, नाउ आई हैव टू कन्वर्ट दिस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा, क्योंकि बाहर है टैन इनवर्स, अंदर मुझे लाने का है टैन की, ताकि प्रॉपर्टी यूज़ कर सकूँ मैं। टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा इक्वल टू थीटा, तो कौन सा फार्मूला मुझे यूज़ करना पड़ेगा? एंड वी नो वेरी वेल दैट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, वेयर 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीपल एंगल फार्मूले में रिजल्ट आते हैं। 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सो आई विल राइट दिस टैन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा को मैं लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा का फिर से हाफ एंगल का फार्मूला, साइन ऑफ 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो उसी तरह से साइन थीटा होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या क्या कैंसिल होता है। दिस 2 विल गेट कैंसिल, दिस साइन थीटा बाई 2 विल गेट कैंसिल विद दिस स्क्वायर, एंड साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 बनेगा टैन थीटा बाई 2। सो दिस इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू थीटा बाई 2। सो 1/2 टाइम्स ऑफ थीटा हो जाएगा, एंड आई हैव एक्स इक्वल टू टैन थीटा, देयर फॉर दिस थीटा विल बी इक्वल टू वॉट tan inverse of x. So replace theta by tan inverse of x, and like this the answer of this question is 1/2 tan inverse x. So value of this expression is 1/2 tan inverse x, which is in the second option. Second option में है। So second one is correct, and this was the 14. Now let us solve the next question number 15। स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं या थोड़ा ट्राई करके सॉल्व कर सकते हैं तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, और you can also try to solve these questions. So students, all the questions are very well selected and important for MHTCET. Now here is my question number 15 for you. See the question number 15, in which I have to find the value of tan of 2 tan inverse of 1/5 minus pi by 4. tan of 2 tan inverse of 1/5 minus pi by 4 की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करने की है। सो गिवन इज tan of 2 tan inverse of 1/5 minus pi by 4.
तो किस प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकता हूँ? सो पहले मुझे यूज़ करना पड़ेगा 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 को मुझे tan इनवर्स में कन्वर्ट करने का है, तो इसलिए मुझे प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी 2 tan इनवर्स ऑफ x। 2 tan इनवर्स ऑफ x होता है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले हैं, तीनों रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 tan इनवर्स x कन्वर्टेड इनटू साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड tan इनवर्स। अगर मुझे 2 tan इनवर्स x को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने का है तो 2 tan इनवर्स x साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan inverse x is tan inverse of 2x upon 1 minus x square, and 2 tan inverse x is cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square. So I have this property 2 tan inverse of x equal to tan inverse of 2x upon 1 minus x square. So 2 tan inverse of 1/5, this is 2 tan inverse x is equal to tan inverse of 2 into x यानी 1/5 upon 1 minus x square यानी 1/5 का स्क्वायर होगा 1/25. So this will be equal to tan inverse of 2/5 into 25/24, and this will become tan inverse of 5/12. So I have this 2 tan inverse of 1/5 equal to tan inverse of 5/12. तो ये tan इनवर्स में कन्वर्ट होगा, या π/4 को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1, क्योंकि tan ऑफ π/4 1 होता है। तो मुझे अंदर का एक्सप्रेशन मिलेगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। यूजिंग दैट प्रॉपर्टी आई कैन सॉल्व दिस एक्सप्रेशन वेरी इजीली। सो सी हियर दिस इज tan ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 इज नाउ tan इनवर्स ऑफ 5/12 माइनस π/4 को मैं लिखता हूँ tan इनवर्स ऑफ 1, ताकि मैं प्रॉपर्टी यूज़ कर सकूँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, एंड यू know the property very well that tan inverse x minus tan inverse y is equal to tan inverse of x minus y upon 1 plus xy. So here tan of tan inverse x, ये x है and ये y है, so tan inverse x minus tan inverse y is tan inverse of x minus y यानी क्या होगा 5/12 minus 1 tan inverse of 5/12 minus 1 tan inverse x minus tan inverse y is tan inverse of x minus y upon 1 plus x into y. 5/12 into 1 is 5/12. So this is equal to tan inverse of, so this will become minus 7/5 minus 12 कितना होगा minus 7/12, और ये होगा 17/12, 12 will get cancelled, so minus 7/17. Now tan of tan inverse of x is equal to x, so therefore this is equal to minus 7/17. So minus 7/17 is the answer to this question, which is in the last option D. Okay students, so this was the question number 15. very nice and best question. किस तरह से मैं प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से अप्लाई करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का है। So for that you must learn all the inverse properties of inverse trigonometric function and all the trigonometric formulas. So this was 15. Now we will solve the next question number 16. So in this question number 16, I have to find the value of tan inverse of sin 2 minus 1 upon cos 2. Very nice and best question. Tan inverse of क्या दिया है sin 2 minus 1 upon cos 2. 2 is रेडियन में एंगल दिया है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करने के लिए 2 को फॉर एग्जांपल 2 थीटा कंसिडर करते हैं। 2 को हम कंसिडर करेंगे 2 थीटा। सो कौन सा फार्मूला यूज़ करके हम अंदर tan ला सकते हैं, क्योंकि बाहर है tan इनवर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आई विल टेक -1 कॉमन फ्रॉम दिस टर्म, सो ये बनेगा 1 माइनस साइन 2 अपॉन कॉस 2, राइट, 1 माइनस साइन 2 अपॉन कॉस 2। अब 1 माइनस साइन 2 थीटा हो या 1 प्लस साइन 2 थीटा हो, अगर मैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर करता हूँ तो मुझे 1 माइनस साइन 2 थीटा मिलेगा। अगर मैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर करता हूँ तो मुझे 1 प्लस साइन 2 थीटा मिलेगा, यानी 1 प्लस साइन 2 थीटा और 1 माइनस साइन 2 थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ 2 थीटा इज कॉस थीटा। अब 2 यानी 2 थीटा है, 2 यानी 2 थीटा है, तो थीटा यानी 1 होगा। सो दिस इज कॉस 1 माइनस साइन 1
cos 1 माइनस साइन 1 का होल स्क्वायर होगा। ये देखिए cos स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन 1 इंटू कॉस 1 क्या बनेगा, साइन ऑफ 2, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन ऑफ 2 थीटा। अब इसे cos 2 थीटा कंसिडर कीजिए डबल एंगल में, तो cos 2 थीटा का पहला ही फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1, right? Cos of 2 theta equal to cos square theta minus sin square theta. Now see here, this is equal to tan inverse of माइनस ऑफ, अब ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके फैक्टर्स हो गए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे एक a माइनस बी फैक्टर है, यहाँ पे भी एक a माइनस बी फैक्टर होगा, a माइनस बी फैक्टर कैंसिल होगा, ऊपर एक a माइनस बी बचेगा। सो ऊपर बचेगा cos 1 माइनस साइन 1 अपॉन इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे a माइनस बी कैंसिल हो चुका है, बचा है a प्लस बी। सो यहाँ पे रहेगा cos 1 प्लस साइन 1। ओके, नाउ सी हियर दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ माइनस, अब इसे मैं cos 1 से डिवाइड करता हूँ ताकि ये tan में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर मैं इसे tan में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो cos 1 से जब मैं डिवाइड करूँगा सो इट विल बी cos 1 बाय cos 1 1 माइनस साइन 1 बाय cos 1, ये होगा tan 1 अपॉन डिनोमिनेटर में मुझे मिलेगा 1 प्लस tan 1। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस tan इनवर्स एक्स, इस माइनस को बाहर ले लेंगे। 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, दैट इज tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा। सो इट इज tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा, यानी कितना होगा, 1 होगा। सो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इज tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा। तो इस तरह से आपको फॉर्मूले याद रखने के हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे शॉर्टकट्स है जिसे आप डायरेक्ट यूज़ करके प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, माइनस साइन एज इट इज़, ये माइनस साइन एज इट इज़, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ theta is equal to theta, so it is minus of pi by 4 minus 1, and by multiplying by minus 1 it is 1 minus pi by 4. So 1 minus pi by 4 is the answer to this question, and this is in the second option. So option B is correct to this question number 16 of inverse trigonometric function for MSTCET. So students, see all the solutions and questions carefully. You can also try to solve these questions. आप भी ट्राई कर सकते हो, और मैं प्रिफरेबली यही कहूँगा कि आप जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है आप वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व करके देखिए। दिस विल गिव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। सो नाउ हियर इज़ द क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एंड इन दिस क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट वी हैव गिवन, हमें क्या दिया है, व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 17। सो सी द 17 क्या इक्वेशन है, tan इनवर्स ऑफ 5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस cot इनवर्स ऑफ 4/7 की वैल्यू मुझे पूछी है। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ 5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस cot इनवर्स ऑफ 4/7। tan इनवर्स 5 प्लस tan इनवर्स 3 माइनस cot इनवर्स ऑफ 4/7 किस प्रॉपर्टी का यूज़ करके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सो आप सभी को पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के दो रिजल्ट्स है, एक पाई वाला है, एक विदाउट पाई वाला है। विदाउट पाई वाला है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज लेस देन 1। अगर एक्स वाई लेस देन 1 होता है तो पाई लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड मेरा रिजल्ट है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे पाई प्लस कब लेते हैं, जब x इंटू वाई इज़ ग्रेटर देन 1 होता है। सो x इंटू वाई इज़ ग्रेटर देन 1, 5 इंटू 3 देखिए, 5 इंटू 3 कितना है, 15 ग्रेटर देन 1 है। तो मुझे इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा पाई प्लस वाले, तभी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने से पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को कभी भी यूज़ करने से पहले आप x इंटू वाई को ज़रूर चेक कीजिए, आइदर इट इज़ ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 है तो पाई प्लस यूज़ करना मत भूलिए। सो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y
एक्स प्लस वाई यानी कितना होगा 5+3 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई 5 इंटू 3 कितना होगा 15 माइनस दिस कॉट इनवर्स ऑफ 4/7 एज इट इज. नाउ दिस इज पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 8/-14 तो ये बनेगा -4/7 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 4/7. सो tan इनवर्स ऑफ -x इज -x तो ये माइनस बाहर आ जाएगा. tan इनवर्स ऑफ -x इज माइनस tan इनवर्स ऑफ x माइनस बाहर आ जाएगा. 4/7 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 4/7. तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट में मुझे मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 4/7 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 4/7. तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके 3 रिजल्ट है. आइडेंटिटी जैसी प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 एंड सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज ऑल्सो π/2. सो हियर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होगा π/2. सो दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू π/2. सो इट इज पाई माइनस π/2 which is equal to π/2 and π/2 is the answer to this question which is in the again second option. So option B is correct to this question number 17. Now students we will solve the next question number 18. 18 नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. तो सी देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ऑन द बोर्ड. 18 नंबर का MCQ सॉल्व करेंगे. तो 18 नंबर के MCQs में हमें क्या दिया है, व्हाट इज गिवन. हमें दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई अगर 2π/3 एंड कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई अगर π/3 है तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी. सो देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एक्स और वाई किस तरह से मिल सकता है. सो दिस वाज 18 वेयर आई हैव गिवन साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2π/3 और मेरा दूसरा इक्वेशन है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू व्हाट π/3. अब इन दोनों इक्वेशन को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करना चाहता हूँ. तो दोनों इक्वेशन एक तो साइन इनवर्स में होनी चाहिए नहीं तो दोनों इक्वेशन कॉस इनवर्स होनी चाहिए. तो पहले इक्वेशन में मैं पहले इक्वेशन को अगर मैं कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करूँगा तो दोनों इक्वेशन कॉस इनवर्स में हो जाएंगे, या आइदर आई विल कन्वर्ट दिस सेकंड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स. तो साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स और कॉस इनवर्स का साइन इनवर्स कर सकते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2. सो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अगर π/2 होता है तो मैं इस इक्वेशन को चेंज करता हूँ. साइन इनवर्स एक्स को लिखूंगा मैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स. अगर साइन इनवर्स एक्स π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स है क्यों होता है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है π/2. So sin inverse y can be written as π/2 minus sin inverse of y is equal to 2π/3. So minus cos π/2 minus sin inverse x is π/2 minus cos inverse x. Sin inverse y is π/2 minus what? Cos inverse y. Sin inverse y is π/2 minus cos inverse y. So cos inverse y minus ये प्लस हो जाएगा राइट साइड में. So I will get cos inverse x plus cos inverse y इज इक्वल टू देखिए π/2 प्लस π/2 पाई होगा 180 माइनस 120 60 होगा 60 होगा यानी कितना होगा π/3. तो लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग दिस एंड दिस. सो ए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होगा 2 कॉस इनवर्स एक्स. दिस एंड दिस विल गेट कैंसल. π/3 प्लस π/3 कितना होगा 2π/3. again this 2 will get cancelled and I have the cos inverse x equal to what π/3 and the value of x is cos of π/3. cos 60 कितना होगा 1/2. I have this value of x. now I have to find the value of y. तो मैं cos इनवर्स x को यहाँ पे लिख देता हूँ. यहाँ पे अगर मैं cos इनवर्स x की वैल्यू π/3 लिखता हूँ, इफ़ cos इनवर्स x इक्वल टू π/3 तो ये π/3 कैंसिल हो जाएगा. cos इनवर्स y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, cos इनवर्स y क्या मिलेगा 0 और y होगा cos 0. y होगा cos 0 तो cos 0 कितना होता है 1 तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी 1. सो 1/2 1 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन विच इज़ इन द सेकेंड ऑप्शन. तो स्टूडेंट्स अगर आपको सॉल्व करने को टाइम लगता है, आपको समझ में नहीं आता है तो डायरेक्टली आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं. x इक्वल टू 1/2 y इक्वल टू 1 विल सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन. x इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कितना होगा 30 डिग्री.
साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितना होगा π/2, 90 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री 120 डिग्री विच इज इक्वल टू 2 π/3। तो इस तरह से आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हो। सो स्टूडेंट दिस वाज द 18। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन आपके सामने है। ज़रा सोचिए, देखिए किस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो, किस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वाज द 19 एंड द वेरी बेस्ट क्वेश्चन फॉर यू। इसमें मुझे पूछा है साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, राइट। सो आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। किस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, देखिए कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। सो अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को मैं लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स को लिख सकता हूँ मैं कॉस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी हमें पहले से पता है। We know this property that sin inverse x equal to cos inverse of root of 1 minus x square and cos inverse x equal to sin inverse of root of 1 minus x square। तो इसी प्रॉपर्टीज़ का मैं यूज़ करूँगा, सो हियर sin inverse of cos of sin inverse x, so sin inverse x is cos inverse of root of 1 minus x square plus कॉस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ, कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकता हूँ मैं साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब देखिए साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज एक्स, सो ये बनेगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप डायरेक्टली ध्यान रख सकते हैं, या साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स को भी आप रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। सो अगेन हियर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दिख रहा है। सो अगेन साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा π/2। सो वेरी इजी क्वेश्चन, π/2 इसका आंसर है विच इज इन द सेकेंड ऑप्शन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट टू दिस क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अभी टोटल 24 MCQ सॉल्व करने के हैं। आप भी ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड द बेस्ट क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। सो सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। सी द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए या खुद भी ट्राई कीजिए फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सो ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी सिलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एंड इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव गिवन, आई हैव गिवन द cos इनवर्स x इक्वल टू अल्फा वेयर x इज इन बिटवीन 0 to 1 एंड साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2π/3 है। तो tan इनवर्स ऑफ 2x की वैल्यू क्या होगी। तो पहले मुझे दिया है, फर्स्टली आई हैव गिवन दैट cos इनवर्स x इक्वल टू क्या है अल्फा, x इज इन बिटवीन 0 to 1, सो दैट इज द डोमेन ऑफ, इन द डोमेन ऑफ cos इनवर्स। सो x इक्वल टू होगा cos अल्फा, x इक्वल टू क्या होगा cos अल्फा। नाउ आई हैव दिस एक्सप्रेशन साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स ऑफ 1/2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या दिया है 2π/3। ओके, तो हमें tan इनवर्स ऑफ 2x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती है। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले से ही मुझे ये पता है कि मैं cos x को मुझे क्या लिखने का है cos अल्फ़ा, x इज इक्वल टू व्हाट cos अल्फ़ा। सो आई विल सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू cos अल्फ़ा, x को मैं लिखूँगा cos अल्फ़ा। सो यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन आई विल सॉल्व दिस। सो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ
अब देखिए x को मुझे cos अल्फा लिखने का है तो ये बनेगा 2 cos अल्फा x इक्वल टू cos अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा और उसका रूट होगा साइन अल्फा। सो 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा 2 साइन इंटू कॉस अल्फा क्या होगा साइन ऑफ 2 अल्फा डबल एंगल फॉर्मूला साइन ऑफ 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अब देखिए सेक इनवर्स x इक्वल टू फिर से कॉस अल्फा लिखने का है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला है कॉस ऑफ 2 थीटा का। सो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 क्या होगा कॉस ऑफ 2 अल्फा 1 अपॉन कॉस ऑफ 2 अल्फा 1 अपॉन कॉस ऑफ 2 अल्फा क्या होगा सेक 2 अल्फा इज इक्वल टू 2π/3। ओके नाउ सी हियर सो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 अल्फा होगा 2 अल्फा सेक इनवर्स ऑफ सेक ऑफ 2 अल्फा होगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 2π/3 and this is equal to 4 alpha is equal to 2π/3 so this is 2 alpha is equal to क्या मिलेगा π/3। ओके सो 2 अल्फा इज π/3। अगर 2 अल्फा π/3 है तो मुझे वैल्यू अल्फा कितना मिलेगा π/6 एंड अल्फा अगर π/6 है तो अल्फा क्या है कॉस इनवर्स ऑफ x। सो अल्फा क्या है cos inverse of x alpha is cos inverse of x is equal to π/6 so x is equal to cos of π/6 cos 30 कितना होता है √3/2 and I have to find the value of tan inverse of 2x। मुझे पूछा क्या है tan inverse of 2x। so tan inverse of 2x को मैं किस तरह से फाइंड कर सकता हूँ tan inverse of 2x is tan inverse of 2x 2 इंटू एक्स 2 कैंसिल तो ये बनेगा √3 tan 60 √3 होता है। सो दिस इज इक्वल टू π/3 सो π/3 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड दिस π/3 इज द करेक्ट आंसर विच इज इन द थर्ड ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट टू दिस क्वेश्चन नंबर 20। सो ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसे आप केयरफुली देखिए और either you can also try to solve these questions। नेक्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, वेरी नाइस एंड फेमस क्वेश्चन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 21 सी द सॉल्यूशन ऑफ 21 का सॉल्यूशन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 21। तो मुझे पूछा है 21 में द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x। ओके सी द क्वेश्चन नंबर 21 कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कॉट इनवर्स x। तो इस तरह का मुझे इक्वेशन दिया है, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ x। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ट्रायंगल का यूज़ करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, कॉट इनवर्स को मैं कन्वर्ट करूंगा साइन इनवर्स में, क्योंकि बाहर साइन है तो अंदर मुझे साइन इनवर्स लाना पड़ेगा। तो कॉट इनवर्स को मैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट करूँगा, फिर यहाँ साइन इनवर्स आएगा, तो फिर साइन ऑफ साइन इनवर्स वो एंगल होगा, फिर इस tan इनवर्स को मैं कन्वर्ट करूँगा कॉस इनवर्स में, क्योंकि बाहर क्या है कॉस इनवर्स। तो ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। तो पहला मेरा टारगेट है कॉट इनवर्स x को लिखने का है साइन इनवर्स क्या होगा। तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करता हूँ, लेट दिस इज एंगल थीटा, लेट कॉट इनवर्स ऑफ x थीटा कंसिडर करता हूँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक एंगल होता है। सो टेट कॉट इनवर्स x को मैं थीटा कंसिडर करता हूँ, तो कॉट थीटा बनेगा x कॉट थीटा x। तो x के कॉट थीटा का रेशो क्या होगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। सो दिस इज कॉट थीटा, तो इसका हाइपोटेनियस क्या होगा पाइथागोरस से √1 + x²। तो कॉट इनवर्स ऑफ x को मुझे अब साइन इनवर्स x लिखने का है, तो साइन इनवर्स क्या होगा अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, सो इट विल बी 1/√1 + x²। ओके अब मेरा क्वेश्चन कैसा बना है देखिए, नाउ आई हैव दिस कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ, अब
tan इन कॉट इनवर्स को मैं लिखने वाला हूँ साइन इनवर्स ऑफ 1/√1 + x²। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/√1 + x², साइन ऑफ साइन से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा 1/√1 + x²। तो ऐसा क्वेश्चन छोटा छोटा बनते जाएगा। अब इस tan इनवर्स को मुझे कन्वर्ट करने का है कॉस इनवर्स में। तो tan इनवर्स के लिए फिर से मैं ट्रायंगल बनाता हूँ। सो लेट दिस इज एंगल थीटा। tan इनवर्स ऑफ √1 + x² को मैं थीटा कंसिडर करता हूँ। तो tan थीटा ये बनेगा tan थीटा 1/√1 + x²। सो 1/√1 + x²। अब इसका हाइपोटेनियस क्या होगा? हाइपोटेनियस क्या होगा? पाइथागोरस √(this² + this²). सो 1 + 1 क्या होगा? 2। सो इट इज़ x² + 2 होगा। तो अब देखिए, नाउ दिस विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ, अब tan इनवर्स का बनाने का है मुझे कॉस इनवर्स। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स क्या होगा? थीटा देखिए, कॉस थीटा, तो थीटा कॉस थीटा का रेशो क्या होता है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट क्या है मेरा? x² + 1 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? x² + 2। सो दिस इज सॉल्व्ड। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x = x। सो आंसर इज x² + 1 अपॉन x² + 2। सो विथ द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इसे हमने सॉल्व किया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की मदद ज़रूर लेनी चाहिए फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन MHTCT और इन JEE Main। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ इन द लास्ट ऑप्शन D। सो लास्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट है। सो दिस वाज 21 वेरी नाइस एंड बेस्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 22, सी ऑन द बोर्ड। 22 क्वेश्चन को आप पढ़िए, ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हो। सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज वेरी नाइस क्वेश्चन। tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3 अगर दो एंगल है किसी ट्रायंगल के, तो उसका तीसरा एंगल क्या होगा? व्हाट विल बी द थर्ड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इफ द टू एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर tan इनवर्स 2 एंड tan इनवर्स ऑफ 3। सो स्टूडेंट्स, लेट थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज थीटा। थर्ड एंगल मैं थीटा कंसिडर करता हूँ। सो पहला एंगल है मेरा tan इनवर्स 2, दूसरा एंगल है tan इनवर्स 3, तीसरा एंगल थीटा कंसिडर करता हूँ। सो लेट दिस आर द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री, पाई होता है। सो हियर tan इनवर्स ऑफ 2 + tan इनवर्स ऑफ 3 + थर्ड एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई। ये दो एंगल पहले से दिए हैं ट्रायंगल के, tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3। आई हैव टू फाइंड द थर्ड एंगल। देन द थर्ड एंगल इज, फिर से देखिए, tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y। सो 2 × 3 इज 6 इज ग्रेटर देन 1। तो मुझे tan इनवर्स x + tan इनवर्स y की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी? पाई प्लस वाली। फिर से पाई प्लस वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। सो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ, इफ x × y इज ग्रेटर देन 1 देन tan इनवर्स x + tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x + y अपॉन 1 - x × y। तो 2 × 3 6 होगा, प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई। सो दिस इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 5 अपॉन -5 - 1 प्लस दिस थीटा इक्वल टू पाई। सो दिस पाई विल गेट कैंसल एंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ माइनस tan इनवर्स 1 होगा। तो ये राइट साइड में होगा tan इनवर्स 1 विच इज इक्वल टू π/4। सो देयरफॉर थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज व्हाट? π/4। π/4 यानी कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन थर्ड विच इज π/4 45 डिग्री। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, अगर ट्रायंगल के दो एंगल tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3 है, तो तीसरा एंगल क्या है? tan इनवर्स ऑफ 1। सो दिस इज ऑल्सो अ स्टैंडर्ड रिजल्ट दैट tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 2 एंड tan इनवर्स 3 आर द angles of the triangle। tan inverse 1, tan inverse 2 and tan inverse 3 are the angles of the triangle because tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3 हमेशा कितना आता है? पाई आता है। So this is the standard result of inverse trigonometric function and this was the question number 22. Now we will solve the next question number 23. See and read the question number 23, इसको solve कीजिए, try कीजिए। So see the 23
ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 23। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दिया है और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने की है। एंड हियर द इक्वेशन इज साइन इन्वर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू π/2, ऐसा इक्वेशन है। तो इसे हमको सॉल्व करने का है और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ऑप्शन भी दिया, आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं कौन सी x की वैल्यूज इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट विदाउट चेकिंग द ऑप्शन वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस। सो दिस साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ x। फिर से इस साइन इनवर्स को भी मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ, इस साइन इनवर्स को भी मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। सो दिस 1 माइनस एक्स इक्वल टू होगा साइन ऑफ π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ x। सो दिस 1 माइनस एक्स साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा, साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। सो साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। कॉस ऑफ थीटा क्या है? 2 साइन इनवर्स ऑफ x। नाउ सी स्टूडेंट्स, 1 माइनस एक्स इक्वल टू, अब इसे कॉस ऑफ 2 थीटा समझिए, इसे समझने का है मुझे कॉस ऑफ 2 थीटा, और मुझे इसको यहाँ पे साइन इनवर्स है तो मैं इसे कन्वर्ट करूँगा साइन में। सो कॉस ऑफ 2 थीटा का साइन का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज कॉस ऑफ 2 थीटा। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या है? साइन इनवर्स एक्स। समझ में आ रहा है? कॉस ऑफ 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो कॉस ऑफ 2 इसे मैं थीटा कंसिडर कर रहा हूँ, 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट? साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, नाउ साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा? एक्स होगा। सो दिस विल बी 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज एक्स, और उसका स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर होगा। सो अगेन दिस 1 विल गेट कैंसिल, ये 1 कैंसिल होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/2, 0 एंड 1/2। तो पहला ही ऑप्शन है 0 एंड 1/2, लेकिन मुझे डाउट है, बट आई हैव डाउट। सो पहले मैं चेक करूँगा वेदर दिस वैल्यूज ऑफ x आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन और नॉट। सो इफ आई पुट x इक्वल टू 0, 1 माइनस 0 इज 1, साइन इनवर्स 1 कितना होगा? π/2। इसे मैं चेक कर रहा हूँ, x इक्वल टू 0, 1 माइनस 0 इज 1, एंड साइन इनवर्स ऑफ 1 इज π/2 माइनस 2, x इक्वल टू 0, साइन इनवर्स 0 इज 0, so π/2 minus 0 is equal to π/2, so this is the correct, x equal to 0। अब मुझे x equal to 1/2 के लिए भी चेक करने का है, x equal to 1/2 के लिए भी हम चेक करेंगे whether this value of x is satisfying this equation or not। so x equal to 1/2, 1 minus 1/2 is 1/2, sin inverse of 1/2 30 डिग्री, यानी a होगा π/6 minus 2 sin inverse of 1/2 π/6 minus 2 π/6 is not equal to π/2, so this is not satisfying the given equation। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर आप ऑप्शन नहीं चेक करते थे, यानी अगर आप इस x की वैल्यूज़ को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके ये चेक नहीं करते थे कि वेदर दिस वैल्यूज़ आर सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन और नॉट, तो आप फट से पहले इक्वेशन को टिक कर देते थे, करेक्ट कर देते थे, विच वॉज रॉन्ग, और रॉन्ग हो जाता था। सो x इज नॉट इक्वल टू 1/2, ओनली x इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, एंड दिस इज इन द ऑप्शन सी, विच इज इन द व्हाट? ऑप्शन सी। ओके, सो थर्ड ऑप्शन सी इज करेक्ट to this question number 23, and now it is the time to solve the last MCQ of this lecture 24। पहले 12, इस लेक्चर के 12 क्वेश्चन है। सो लास्ट 24 MCQ सॉल्व करेंगे हम इन्वर्स का। सो स्टूडेंट्स प्लीज सी ऑल द लेक्चर्स ऑफ MHT CT केयरफुली। देखिए, आपका इन लेक्चर्स को काफ़ी MHT CT एग्ज़ाम में
फ़ायदा होगा। 24 लास्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर यू। कॉस इनवर्स ऑफ क्या पूछा है, -17π/6। इस तरह का क्वेश्चन को मैंने बोला था आप इन टाइप के क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट बुक में मिलेंगे, MST CET के बुक्स में मिलेंगे। इन्हें आप ज़रूर सॉल्व करके देखिए, क्योंकि इट इज़ पॉसिबल टू occur दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन 2021 MST CET। सो सीआर कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ से माइनस साइन को पहले हम गायब कर देंगे। कॉस इनवर्स ऑफ cos of minus theta is cos theta, so it is simply 17π/5। अब cos inverse of cos of theta is equal to theta होता है। cos inverse of cos of theta is equal to theta, यानी 17π/5 होगा। 17π/5 ऑप्शन में है लास्ट ऑप्शन करेक्ट है नहीं है, नॉट, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ थीटा इक्वल टू थीटा कब होता है, व्हेन दिस थीटा बिलोंग्स टू 0 to π। 0 to π इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स की वो रेंज है। तो cos इनवर्स की वैल्यू हमेशा 0 to π में होती है, एंड दिस 17π/5 इज ग्रेटर देन π है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करके देखिए। सो 17π/5 इसका आंसर नहीं हो सकता। ओके, तो फिर क्या करने का है, cos इनवर्स ऑफ, इसे मैं लिखता हूँ 20π - 3π/5। ये तो क्लियर होगा है कि ये आंसर नहीं है, तो यहाँ से फिर से सॉल्व किए। 17π को लिखा है मैंने 20π - 3π/5। सो इट इज़ cos इनवर्स ऑफ, cos ऑफ सेपरेट कीजिए इस डिनोमिनेटर को, 4π - 3π/5। नाउ दिस इज cos इनवर्स ऑफ, cos ऑफ 4π - थीटा। 4π - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, 4π यानी नो चेंज। सो cos ऑफ 4π - थीटा इज cos थीटा, सो cos ऑफ थीटा इज 3π/5। अब अगेन cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ थीटा इक्वल टू थीटा, इफ दिस थीटा यानी 3π/5 लाइज इन द 0 to π। 0 to π में ये एंगल है, यस, इट इज श्योरली इन द इंटरवल 0 to π, सो वी कैन राइट इट एज 3π/5। 3π/5 इज इन द इंटरवल 0 to π, 0 to 180 डिग्री में है। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, 3π/5, विच इज इन द second option। so students, this was the last question and this is the answer to this question number 24। तो आज भी हमने सॉल्व किए 12 इंपॉर्टेंट MCQs। लास्ट लेक्चर में भी हमने सॉल्व किए थे 12 इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर MHT CET। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे 12 इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ आवर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर MHT CET। तो वेट कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विथ इंपॉर्टेंट MCQs। ओके, बाय स्टूडेंट।